Hello everyone and welcome back to my channel. And the topic that we are going to do now is the French Revolution. This is one of the most important event in the series of emergence of sociology. And even if you're not mentioning in your answer about the commercial revolution, or let's just say scientific revolution in a very detailed manner, but this is one of the one event that can complete your answer of emergence of sociology, because it has the direct impact over the thought process of the thinker of that time, which led to the foundation of sociology. So we will dive deep into the French Revolution. The French Revolution, which erupted in 1789, marked a turning point in the history of human struggle for the freedom and equality. So basically it's saying that French Revolution जो था 1789 में इरप्ट हुआ था, जिसने ह्यूमन हिस्ट्री के जो स्ट्रगल थी उसमें फ्रीडम और इक्वालिटी को सेंटर स्टेज पे लाकर खड़ा किया. इट पुट एन एंड टू द एज ऑफ फ्यूडलिज्म. इसने सामंतवाद की जो एज चली आ रही थी उसको ख़त्म किया एंड अशर्ड इनटू अ न्यू ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी, और ये सोसाइटी के लिए एक नया ऑर्डर को स्थापित किया. एन आउटलाइन ऑफ दिस रेवोल्यूशन विल एक्सप्लेन टू यू द काइंड ऑफ टर्मोइल दैट अकर्ड इन द यूरोप. जब हम इस रेवोल्यूशन का आउटलाइन देंगे तो आपको पता चलेगा कि इस क्या क्या टर्मोइल उस ड्यूरेशन में हुए थे, राइट. एंड रेवोल्यूशन से अगर हम एक एनालॉजी ड्रॉ करना चाहें या एक कंपैरिजन ड्रॉ करना चाहें, तो वी ऑल्सो हैव आर इंडियन द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस विच इज़ नोन एज द 1857 revolution that was brought by the locals. And so that is also there where you can get an idea, अगर आप इंडिया में if you're a student, कि how French Revolution has brought the changes in the society. Now we will look at the basic picture of the French society and the division into feudal estate. So before the revolution occurred, what was the structure of the society? And basic structure of the society comprises where the division of the society in various groups, and what was the basis of that. So we will look at it. So French society was divided into feudal estates. Now estate is just like the caste, or estate is just like the class. You have higher class, lower class, and the same goes for, you have first estates, and you have second estates, and then you have third estates. The structure of the feudal French society comprised the three estates. अब फ्यूडल यानी सामंतवादी जो फ्रांसीसी समाज था उसमें 3 स्टेट होते थे. ईस्टेट्स आर डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन. ये संस्तरीकरण के कुछ सिस्टम है फाउंड इन फ्यूडल यूरोपियन सोसाइटी, जो सामंतवादी यूरोपियन समाज में पाई जाती थी, वेयर बाय वन सेक्शन और वन ईस्टेट इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर इन टर्म्स ऑफ स्टेटस, प्रिविलेजेस एंड रिस्ट्रिक्शन अकॉर्डिंग टू दैट ई स्टेट. एंड इन पर्टिकुलर ई स्टेट्स में क्या होता था, एक स्टेटस के लोग रहते थे, एक उनके कुछ प्रिविलेजेस होते थे और उनके कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते थे. एंड ये जो सिमिलर वाले स्टेटस के लोग थे, प्रिविलेजेस के लोग थे, रिस्ट्रिक्शंस वाले लोग थे, वो एक ई स्टेट को फॉर्म करते थे. ऐसे करके वहाँ पे 3 ई स्टेट थे. नाउ वी विल लुक एट द फर्स्ट ई स्टेट. फर्स्ट ई स्टेट कंसिस्ट ऑफ द क्लर्जी विच वॉज स्ट्रेटिफाइड इंटू हायर क्लर्जी such as cardinal and archbishops and the bishops and abbots. So first estates के अंदर भी 2 classes थी. That was higher clergy, that was one class, and there's another which is lower parish या lower priest. Okay, so when we are talking about first estates, we are looking at clergy. Who were the clergy? Clergies are those who control and who owns the mechanism and the functioning of the religion in the society. This includes the cardinal, the archbishops, the bishops and the abbots. These were in the higher clergy. They lived the life of luxury क्योंकि वो higher status से आते हैं, gave a very little attention to the religion, और उन्होंने religion पे भी इतना attention नहीं दिया. In fact, some of them preferred the life of politics to religion, और वो कई बार राजनीति करते हुए दिखे. They spend much of their time in wasteful activities like drinking and gambling, etc.
और उन्होंने अपना ज़्यादातर टाइम किस में व्यतीत किया? ड्रिंकिंग में एंड गैम्बलिंग यानी जुआबाजी में. इन कंपैरिजन टू द हायर क्लर्जी, द लोअर पैरिश प्रीस्ट वर ओवरवर्कड एंड पॉवर्टी स्ट्राइकन. एंड उसके कंपैरिजन में जो इसी का दूसरा पार्ट था, द सेकेंड डिवीजन दैट वाज अंडर द फर्स्ट ई स्टेट, दैट वाज लोअर पैरिश एंड दे वर ओवरवर्कड एंड पॉवर्टी स्ट्राइकन. सेकेंड ई स्टेट की जब हम बात करते हैं, इस कंसिस्ट ऑफ नोबिलिटी. There were two kinds of nobles, and noble of the swords and noble of the robe. So nobles are those जो ministers होते हैं एक king की assembly में. Nobles of the swords. Now first nobles, and this was also divided into two parts. So swords and robe. Now when we are talking about nobles of the sword, these were the big landlords, and they were the protectors of the people in the principle, but in reality they led the life of parasite, living off the hard work of the peasants. They led the life of pomp and show, but were nothing more than higher born wastrels. That is, they spent extravagantly and did not work themselves. They can be compared to erstwhile jamidars in India. So nobles of the swords were the owners of the land, and they gave it to the peasants जो उसके ऊपर काम करते थे. एंड इससे आने वाली जितनी भी कमाई थी उसके ऊपर वो अपना लिविंग लाइफस्टाइल को जीते थे. जैसे हमारे इंडिया में ज़मींदार होते थे. नोबल्स ऑफ द रोब वर नोबल्स नॉट बाय बर्थ बट बाय टाइटल. ये जन्म से ही नोबल्स नहीं थे, बट उनको टाइटल दिया गया था. दे वर द मैजिस्ट्रेट एंड जजेस. अमंग दीज नोबल्स सम वर वेरी progressive and liberal, as they moved their positions from common citizens who belongs to the third estate. अब nobles of the robe एक ascribed achieved status था, right? एंड अचीव्ड स्टेटस में वो लोग आ जाते हैं जो खुद की मेहनत से यहाँ तक पहुँचते हैं. मतलब आपने अपने ई स्टेट को छोड़ के, विच वॉज द थर्ड ई स्टेट, आपने इतनी मेहनत करी कि आपने उनके बराबर का नाम कमाया. जैसे इंडिया में आप ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेट्स में ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो बहुत ही गरीब तबके से आते हैं, बट दे बिकेम IAS एंड PCS ऑफिसर्स, एंड देन दे कंसिडर्ड एज द हाई क्लास. So they were there, and in the nobles of the sword you can keep those who are coming from a wealthy backgrounds, those who already have a lot of money, which you can keep a lot of farmers, those who are big farmer and owners of the land. The biggest example could be people from Haryana and Punjab. So that was there. And the third estate comprises rest of the society. इसमें सारे वो लोग include थे जो ऊपर वालों में नहीं थे. इसमें आते हैं peasant, merchant, artisans and others. There was a vast difference between the condition of peasants and that of the clergy and nobility. Clergy is the first estate people. This is nobility is the second estate, and peasants were the third estate. And इन तीनों की लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस था. So first estate, second estate एंड थर्ड ई स्टेट. तो यहाँ पे अब हम थर्ड ई स्टेट की बात कर रहे हैं. द पीजेंट वर्क डे एंड नाइट वर ओवरबर्डन्ड और ओवरलोडेड विद द टैक्सेस. दे लिव्ड अ हैंड ऑफ माउथ एक्सटेंस. सो बेसिकली जो वो कितना भी उससे उनकी जितना भी अर्निंग करते थे वो सब उनकी लिविंग में चली जाती थी. लाइक दे यूज टू प्रोड्यूस दैट मच ओनली. दे प्रोड्यूस द फूड ऑन विच द होल सोसाइटी डिपेंडेंट. और उसके अलावा जो वो लैंड के ऊपर काम करते थे, जिसकी वजह से उनकी वजह से उनके हार्डवर्क की वजह से पूरी सोसाइटी का सस्टेनिंग हो रही थी. यट दे कुड बेयरली सर्वाइव ड्यू टू द फेलियर्स ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट. बट गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा था, इसीलिए उनका जो सर्वाइवल था डेट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट. द किंग इन ऑर्डर टू मेंटेन द गुडविल विद द अदर टू स्टेट्स, यानी पहले दो स्टेट्स के बीच में जो किंग अपनी छवि बनाकर रखना चाहते थे, उसकी वजह से उन्होंने क्या किया था, द क्लर्जी एंड द नोबिलिटी, द किंग कंटिन्यू टू एक्सप्लॉइट द पुअर. उसने थर्ड ई स्टेट को बहुत एक्सप्लॉइट किया. द पुअर पीजेंट हैड नो पावर अगेंस्ट हिम. और जो थर्ड ई स्टेट था उनके पास कोई पावर भी नहीं थी कि वो किंग के अगेंस्ट में जा सकें. While the clergy and nobility kept on pampering and flattering the king, और जो फर्स्ट टू स्टेट में clergy and nobility थी वो किंग को हमेशा फ्लैटर करके रखने की कोशिश करते थे. So as compared to the peasants, the condition of middle classes, also known as bourgeoisie, comprising the merchant, bankers, lawyers and manufacturers, was much better. अब इसी क्लास के अंदर
दो क्लासेस भी आती हैं जिसमें आप पीजेंट्स को भी रखते हैं, एंड एक क्लास होती है जो वर्कर्स की क्लास होती है, लेकिन दोज हु आर द स्किल्ड वर्कर्स एंड दोज हु आर एजुकेटेड पीपल. So you keep merchant there, bankers there, lawyers there and manufacturers there. जो इनसे थोड़े से better थे, they are known as bourgeoisie. These classes too belongs to the third estate. ये class भी third estate को belong करती थी, but the poverty of the state which led to the price rise during the 1720 to 1789 instead of adversely affecting them helped them. But जब प्राइस राइज किए गए यानी पैसों की कीमत बढ़ाई गई, तो ये वाला जो क्लास था थर्ड ई स्टेट का, उसको बहुत फ़ायदा हुआ इंस्टेड ऑफ द पीजेंट. They derived profit from the rise of the money, and the fact that French trade had improved enormously also helped the commercial classes to the great extent. अब जब हमारा ट्रेड बढ़ा, फ्रेंच का ट्रेड बढ़ा था, तो मर्चेंट्स को बहुत फ़ायदा हुआ, बैंकर्स को फ़ायदा हुआ, लॉयर्स को एंड मैन्युफैक्चरर्स को बहुत फ़ायदा हुआ, बट पीसेंट को नहीं हुआ. दस दिस क्लास वॉज रिच एंड secure, but it has no social prestige as compared to the higher prestige of the members of the first and second stage. लेकिन जब प्रेस्टीज की बात की जाएगी, मान सम्मान की बात की जाएगी, तो ये लोग भी थर्ड स्टेट का पार्ट माने गए. In spite of controlling trade, industries, banking, etc., bourgeoisie had no power to influence the code and administration, which is in the second estate. The other two states looked down upon them. मतलब एक social gauge जो था वो बहुत ही नीचे के लोग के जैसे कंसिडर करने वाला था. द किंग पेड वेरी लिटिल अटेंशन टू देम, दस गेनिंग पॉलिटिकल पावर बिकेम नेसेसरी फॉर देम. और क्योंकि किसी ने भी इन पे इतना ध्यान नहीं दिया, उनको एक बहुत ही हीन दृष्टि से देखा जाता था, किंग ने भी उन पे ध्यान नहीं दिया, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी था कि वो पॉलिटिक्स में आए. द क्लर्जी एंड नोबिलिटी बोथ कंटिन्यूड. क्लर्जी फर्स्ट ई स्टेट, नोबिलिटी सेकेंड ई स्टेट. दे बोथ कंटिन्यूड only constitute only 2% of the population, but they owned about 35% of the land. के पास 35% of the land है. The peasants formed 80% of the population, but they own only 30% of the land. कितना बड़ा discrimination है, right? The first two states paid almost no taxes to the government. इन लोगों ने कोई भी टैक्स नहीं दिया गवर्नमेंट को. The peasantry on the other hand, ये 80% लोगों को burdened with the taxes of various kind. It paid taxes to church, feudal lords, taxes from in the form of income tax, poll tax, land tax to the state. Thus, you can see how much burden and poverty stricken the peasant had become at that time. And इसीलिए जो peasant वाला वर्क था, peasant वाला जो तबका था, वो बहुत ही ज़्यादा पुअर होता जा रहा था. They were virtually carrying the burden of the first two states on their shoulder, क्योंकि सारा का सारा टैक्स कौन पे कर रहा है? थर्ड ई स्टेट पे कर रहा है. On the top of it all, the prices had gone generally risen by about 65% during the period of 1720 to 1789 when the French Revolution occurred. और इसीलिए इनके ऊपर बहुत ज़्यादा burden बढ़ गया. Now we will look at the political aspect of the French society at that time. The political aspect of the French society, like in all the absolute monarchies, the theory of divine right of the king was followed in the France too. Divine right of the king मतलब राजा का ही रूल रहेगा, ये जो प्रिंसिपल था ये फ्रांस में भी फॉलो किया जा रहा था, क्योंकि उस टाइम सभी जगह मोनार्की थी, राजशाही शासन था. फॉर अबाउट 200 years the kings of the Bourbon dynasty ruled the France. Under the rule of the king, the ordinary people had no personal rights. मतलब लोगों के, आम जनता के पास कोई भी पर्सनल राइट्स नहीं थे. They only served the king. उनको केवल राजा को ही सर्व करना था. एंड हिज नोबल्स इन द वेरियस कैपेसिटीज़, और उसके जो नोबल्स होते थे, दीज वर कंप्राइजिंग ऑफ द फर्स्ट स्टेट एंड द सेकेंड ई स्टेट, उन्हीं को सर्व करते रहते थे. द किंग वर्ड्स वॉज लॉ, और जो राजा के जो बातें होती थी वो क्या बनते थे? कानून बनते थे. एंड नो ट्रायल्स वर रिक्वायर्ड टू अरेस्ट अ पर्सन ऑन द किंग्स ऑर्डर, और कोई भी ट्रायल्स नहीं किए जाते थे, कोई भी जांच पड़ताल नहीं की जाती थी जब भी किंग का ऑर्डर होता था किसी भी इंसान को अरेस्ट करने के लिए. द laws too were different in different regions, giving rise to the confusion and arbitrariness. और जो लॉ थे वो भी जगह जगह परिवर्तित होते रहते थे, जिसकी वजह से काफ़ी सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका था. There was no distinction between the income of the state and income of the king. और जो स्टेट की इनकम आती थी, जो कि वेरियस टैक्सेस से आती थी, वही इनकम ऑफ द किंग मानी जाती थी. नाउ वी विल लुक एट द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी. The kings of the France from Louis XIV onwards
फॉट कॉस्टली वॉर्स। जो फ्रांस में राजा रहे लुई द 14th ऑनवर्ड्स, उन्होंने काफ़ी कॉस्टली वॉर्स लड़े विच रून द कंट्री। उसने क्या किया, कंट्री को खोखला कर दिया। एंड व्हेन द लुई द 14 डाइड इन 1715, और जब लुई 14वें की मृत्यु हुई थी 1715 में, फ्रांस हैड बिकम बैंकरप्ट। फ्रांस क्या हो गया, दिवालिया हो गया था। लुई 15 इंस्टेड ऑफ रिकवरिंग फ्रॉम द रून केप्ट ऑन बोरोइंग मनी फ्रॉम द बैंकर। और लुई द 15 जो राजा आए, उन्होंने क्या किया, इस जो रिकवरी करने के बजाय, ये जो बैंकरप्सी हुई थी उससे रिकवरी करने की बजाय उन्होंने बैंक से और लोन लेना स्टार्ट कर दिया। हिज फेमस सेंटेंस इज़ आफ्टर मी द लेक। आफ्टर मी द लेक का मतलब होता है, let me just remember this in just 1 second. So that's the chronology. It's like the flood. So डेल का मतलब होता है flood, और rain, or something that overwhelmingly destruct something. So destruction is also there. So after me the deluge or the flood describe the kind of financial crisis France was facing. तो ये जो शब्द है मैं बताता है कि फ्रांस उस समय किस तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस को झेल रहा था। लुई द 16 अ वेरी वीक एंड इनफेक्टिव किंग। तो जब लुई 16वें आए, और वो तो बहुत ही इनफेक्टिव एंड बहुत ही वीक काइंड ऑफ किंग थे, इनहेरिटेड द रून्स ऑफ द बैंकरप्ट गवर्नमेंट। उन्होंने भी क्या किया, ये जो बैंकरप्सी थी उनको वो सब किस में मिली, जायदाद के तौर पर मिली, क्योंकि उनके जो दादा रहे, उनके जो फादर रहे, उन्होंने सब के टाइम पे फ्रांस का जो पैसा था वो क्या हो रहा था, कम होता जा रहा था, बैंकरप्सी बढ़ती जा रही थी। उनकी जो वाइफ थी क्वीन मैरिया एंटोनिएट, वो काफ़ी अपनी एक्सपेंसिव हैबिट्स के लिए, काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें ख़रीदने के लिए, एंड उनको कोई आइडिया नहीं था जनता के दुख दर्द का, इसके लिए उनको बहुत ही इनफेमस माना जाता है फ्रांस में। और उनका एक फेमस रिप्लाई भी काफ़ी क्वेश्चंस में पूछा जाता है, एग्ज़ाम्स में आता है, विच ही गेव टू द पुअर एंड हंग्री पीपल ऑफ द फ्रांस। तो जब बहुत ही गरीब एंड हंग्री लोग जब उनके पास गए थे और उनसे बोला था कि हमें ब्रेड चाहिए, तो जो ये रानी थी ये इतनी अनजान थी कि ब्रेड सस्ता होता है या केक, तो उन्होंने बोला था इफ़ यू डोंट हैव द ब्रेड ईट द केक। मतलब आप अगर ब्रेड नहीं है आपके पास तो आप केक खा लो, जबकि इस मूर्ख से कौन पूछे कि जो केक होता है वो ब्रेड से ही बनता है। उसके बाद कुछ इंटेलेक्चुअल्स डेवलपमेंट हुए हैं फ्रांस में, जिनको हम देखेंगे, एंड वी विल लुक एट हाउ इट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजी। सो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इन फ्रांस. France, like some other European countries during the 18th century, had entered the age of reason and rationalism. Some of the major philosophers whose ideas influenced the French people were rationalists and who believed that all the two things could be proved by a reason. एक कारण होता है किसी भी चीज़ के पीछे, और उस कारण से हम उन चीज़ों को दिखा सकते हैं, सही साबित कर सकते हैं। और रैशनलिज्म, तार्किकता को काफ़ी बढ़ावा दिया गया। उसमें से कुछ थिंकर्स के नाम है मॉन्टेस्क्यू, लॉक, वोल्टेयर एंड रूसो. नाउ वी विल लुक एट देम वन बाय वन. नाउ द फर्स्ट वन वाज मॉन्टेस्क्यू. इनकी किताब का नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉ. held that there should not be concentration of authority such as executive, legislative and judiciary at a one place. He believed that in the theory of the separation of power and liberty of the individual. Montesquieu वो इंसान थे जिन्होंने कहा कि ये जो तीनों आपके अंग होते हैं किसी भी अथॉरिटी को चलाने के लिए, वो एक साथ नहीं होने चाहिए. एग्जीक्यूटिव अलग होना चाहिए, लेजिस्लेटिव जो आपकी कानून बनाने वाली जो असेंबली होती है, लोगों का समूह होता है, रिप्रेजेंटेटिव का जो समूह होता है वो अलग होना चाहिए, जो उसको लागू करने वाले हैं वो अलग होने चाहिए, और जुडिशरी जो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने वाले होते हैं उनको अलग से रखना चाहिए. जैसा कि इंडिया में भी आप देखते हैं द सेपरेशन ऑफ पावर. सो द सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी केम फ्रॉम दिस पर्सन, एंड ही ऑल्सो बिलीव्ड सेपरेशन ऑफ पावर एंड द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल. जो जनता है, जो लोग हैं, उनके पास लिबर्टी होनी चाहिए. उसके बाद आते हैं लॉक. एंड लॉक एक इंग्लिश मैन थे, यानी
ब्रिटिश ब्रिटेन से, एडवोकेटेड दैट एवरी इंडिविजुअल हैज़ सर्टेन राइट्स, और उन्होंने बोला कि कुछ लोगों के पास कुछ सर्टेन राइट्स तो होने ही चाहिए, विच कैन नॉट बी टेकन अवे बाय एनी अथॉरिटी, और वो किसी अथॉरिटी के द्वारा वापस नहीं लिए जा सकते हैं. दीज राइट्स वर, वो क्या क्या राइट्स हैं? राइट टू लिव, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू पर्सनल फ्रीडम. एंड he also believed that any ruler who took away these rights from his people should be removed from the seats of the power. और अगर कोई भी लीडर ऐसा करता है कि इन राइट्स को लेने की कोशिश करता है तो उसे अपनी पावर से निकाल देना चाहिए, और एक ऐसा लीडर लाना चाहिए उसकी जगह जो इन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके. उसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं वॉल्टेयर. वॉल्टेयर एक फ्रेंच फिलोसोफर थे जिन्होंने रिलीजियस टॉलरेशन, यानी धर्म के प्रति एक टॉलरेंस की भावना को प्रमोट किया, एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बातें की. ही स्टूड फॉर द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. उसके बाद जो थिंकर्स आते हैं वो आते हैं रूसो ने किताब लिखी थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार पूछी जाती है. एंड ही सेड दैट द पीपल ऑफ अ कंट्री हैव द राइट टू चूज़ देयर सॉवरेन, मतलब उनको अपना सर्वोच्च अधिकार, जो लोग हैं जिनके अंडर में, जिस अथॉरिटी के अंडर में वो रहना चाहते हैं, उसको चुनने का अधिकार है. ही बिलीव दैट द पीपल कैन डेवलप देयर पर्सनालिटी बेस्ट अंडर अ गवर्नमेंट विच इज़ ऑफ देयर ओन चॉइस. लोगों के द्वारा चुना गया उनके ऊपर एक शासन करने वाला होना चाहिए. The major idea of these and several other intellectuals struck in the imagination of the French people. Also, some of them who had served in the French army, which was sent to assist the American in the wars of independence from the British imperialism, came back with the ideas of equality of the individual and their right to choose their own government. और इन सारे इंटेलेक्चुअल्स के अलावा भी बहुत सारे लोग थे जो अमेरिका भेजे गए थे उनके वॉर में मदद कराने के लिए ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म से. तो जब अमेरिका से वो लोग आए तो उनके अंदर कुछ आइडियाज़ साथ में आए. वो थे आइडियाज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल, राइट टू चूज़ देयर ओन गवर्नमेंट. द फ्रेंच मिडिल क्लास वॉज डीपली अफेक्टेड बाय द आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी. And that gave, my dear friends, rise to the French Revolution. The French Revolution. Now we will look at some of the important events in the next video. Till then, take care, bye bye. And if you have any questions, then you can comment down below. Some of the very important things that we have discussed here are the intellectual strata of the French society, the economic, the political, and the social, framework of the French society. I hope you understand this. If you do have any question, please comment down, and I'll see you in the next video. Bye bye.